قصری مہر کے ڈائننگ ٹیبل پر سناٹا چھا گیا تھا۔ زیرب کا ہاتھ ابھی بھی فون پر جمع ہوا تھا، اس کا چہرہ کورے کاغذ کی طرح سفید لگ رہا تھا۔ زیرب لرزتی آواز میں پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ شکور چچا بہت پریشان تھے۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی جیسے انہوں نے کچھ ایسا دیکھ لیا ہو جو انہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ مجھے ابھی حویلی جانا ہوگا۔ میرال فوراً کھڑی ہوتے ہوئے، زیرب اکیلی مت جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، رکو میں ابھی ٹیکسی بک کرواتی ہوں۔ میرال نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنا فون نکالا، جبکہ خالہ نجمہ نے پریشانی میں اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ خالہ، یا اللہ خیر! بیٹا، شکور تو بہت پرانا اور حوصلہ مند آدمی ہے، وہ ایسے نہیں گھبراتا۔ زیرب، دوبارہ ملاؤ فون۔ زیرب دوبارہ ڈائل کرتے ہوئے، پک نہیں کر رہے خالہ۔ بیل جا رہی ہے مگر کوئی اٹھا نہیں رہا۔ مہران، جو اب تک خاموش بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے ذہن میں حویلی مستر کا نام کسی خنجر کی طرح اتر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ زیرب کی آنکھوں میں ایک بے چینی اور پریشانی تھی۔ مہران، سنجیدگی سے کھڑا ہوتے ہوئے، ٹیکسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حسن، گاڑی نکالو، ہم ساتھ جائیں گے، جلدی کرو۔ زیرب مہران کی طرف ہچکچاہٹ سے دیکھتے ہوئے، نہیں، آپ لوگ مہمان ہیں، ہم چلے جائیں گے۔ مہران بھاری آواز میں، یہ وقت بحث کا نہیں ہے زیرب شاہ، جس حویلی کی تم بات کر رہی ہو وہ جتنی تمہاری ہے اتنی ہی میری بھی ہے۔ حسن، چلو۔ حسن نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ حسن، جو ہمیشہ مذاق کرتا تھا، اب مہران کے چہرے کی تپش دیکھ کر بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ زیرب ایک دم ٹھٹک کر رک گئی۔ آپ کی حویلی؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مہران کو دیکھا، مگر مہران اسے نظر انداز کر کے باہر کی طرف چل دیا۔ سیاہ ایس یو وی تیزی سے شہر کی سڑک سے نکل کر پرانے علاقے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ مہران آئینے میں بار بار زہراب کو دیکھ رہا تھا، جو کھڑکی سے باہر تک رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ اب بھی برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ مہران نے دل ہی دل میں سوچا، حویلی مستر، کیا وہاں واقعی کچھ ہے، یا یہ مٹی صرف میرا امتحان لے رہی ہے؟ حسن نے دھیمی آواز میں کہا، شاہ، جی پی ایس دکھا رہا ہے کہ ہم قریب ہیں، مگر یہ راستہ اتنا سنسان کیوں ہے؟ میرال نے چڑھ کر جواب دیا، تو کیا یہاں تمہاری شادی کا فنکشن ہونا چاہیے؟ تم ہاں کرو تو اسی سنسان جگہ پر ماحول جما لیتے ہیں۔ حسن تو پھر حسن ہے، اتنے ٹینشن زدہ ماحول میں بھی جواب دیے بغیر کیسے چپ رہ سکتا ہے؟ مہران نے ایک نظر زہراب پہ ڈالی جو کسی الگ ہی دنیا میں گم تھی۔ میرال نے غصے سے حسن کو دیکھ کر آنکھیں گھماتے ہوئے بولا، جتنی تیز زبان چلتی ہے، گاڑی بھی چلا لو۔ کیا گاڑی جیسے ہی حویلی کے پرانے زنگالود لوہے کے گیٹ کے سامنے رکی، فضا میں اچانک ٹھنڈک بڑھ گئی۔ حویلی مستر اندھیرے میں کسی دیو کی طرح کھڑی تھی۔ گیٹ آدھا کھلا تھا۔ زہراب چیخ کر، چاچا، شکور چاچا۔ زہراب گاڑی رکتے ہی باہر بھاگی۔ مہران بھی تیزی سے اترا۔ میرال بھی زہراب کے پیچھے بھاگتی ہوئی۔ حسن کار پارک کر رہا تھا۔ زہراب حویلی کے تاریک ہال میں داخل ہوئی، جہاں پرانی لکڑی کی مہک اور عجیب سی خاموشی تھی۔ دادی جان، آپ کہاں ہیں؟ وہ بھاگتی ہوئی دادی کے کمرے میں پہنچی۔ منظر دیکھ کر اس کی سانس رک گئی۔ دادی فرش پر گری ہوئی تھیں، بے ہوش۔ ان کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ پاس ہی شکور چاچا سر پکڑ کر بیٹھے تھے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک ملازمہ پاس کھڑی ہڑبڑاہٹ میں بار بار ایمبولینس کو فون کر رہی تھی۔ زہراب دادی کے پاس گرتے ہوئے، دادی آنکھیں کھولیں۔ شکور چاچا، یہ کیا ہوا؟ شکور چاچا روتے ہوئے، بی بی جی اچانک گر پڑیں، شوگر بہت ہائی ہو گئی تھی، بے ہوش ہو گئیں۔ زہراب گھبراؤ مت، ایمبولینس بلاؤ کوئی، میرال چیخ کر بولی۔ ملازمہ ہانپتے ہوئے بولی، میں نے کال کی ہے، ایمبولینس آ رہی ہے۔
ज़हराब ने दादी का हाथ अपने हाथों में लिया। इसके अंदर से एक जोरदार चीख निकली, दर्द और डर की चीख, मगर उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। वो बचपन से ही एक इंडिपेंडेंट और सख्त मिजाज लड़की थी, मगर उस वक्त वो अंदर से टूट रही थी। उसे खौफ था अकेले रह जाने का। अपने माँ बाप को खोने के बाद से वो दादी के लिए बहुत पॉजिटिव थी, हमेशा से दादी के साथ थी। दादी को खोने का खौफ इसकी इन मासूम सी आंखों में साफ जाहिर था। मेरी प्यारी दादी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अस्पताल की सफ़ेद लाइटें और मेडिसिन की बू माहौल को मज़ीद संगीन बना रही थीं। दादी को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया था। ज़हराब बाहर कॉरिडोर में पत्थर की तरह खड़ी थी। मीराल उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी, जबकि मेहरान और हुस्न थोड़ी दूर खड़े थे। मेहरान ने देखा कि ज़हराब की मुट्ठियां भींची हुई हैं। वो रो नहीं रही थी, मगर उसकी खामोशी किसी तूफान का पता दे रही थी। मेहरान आहिस्ता से उसके करीब गया। इसका चारकोल ग्रे ब्लेजर अब अस्पताल की लाइट्स में थोड़ा डार्क लग रहा था। ज़हराब, डॉक्टर अंदर हैं, वो ठीक हो जाएंगी, खुद को संभालो। ज़हराब जो साकत खड़ी थी, ऐसा लग रहा था वो कुछ सुन नहीं रही, बस एक स्टैचू की तरह खड़ी इमरजेंसी रूम पे नज़र जमाए थी। अब शाम का वक्त था। अस्पताल में एक मसरूफ़ खामोशी थी। आसपास से गुजरती हुई नर्सें, वार्ड बॉयज़ और लोग सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे, और हवा में वही मेडिसिन की बू हर जगह फैली हुई थी जिसने पूरे अस्पताल को अपनी लपेट में लिया हुआ था। कुछ देर बाद डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से बाहर आते हैं। डॉक्टर के बाहर आते ही कॉरिडोर में जमी बर्फ जैसे पिघल गई। सबकी नज़रें उनके चेहरे पर थीं। डॉक्टर ने मास्क उतारा और थका हुआ सा सांस लिया। ज़हराब ने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोका, आंखों में वही पर असरार सख्ती मगर दिल में शदीद दहशत। ज़हराब धीमी मगर काटदार आवाज़ में, डॉक्टर, मेरी दादी कैसी हैं? इन्हें होश आया? देखिए, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, जिसकी वजह से बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था। हमने उन्हें स्टेबलाइज कर दिया है, मगर। डॉक्टर थोड़ा हिचकिचाए और उन्होंने एक नज़र मेहरान और हुस्न पर डाली। ज़हराब बेटी, शुगर हाई होना एक वजह है, मगर ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा सडन शॉक लगा है। उनका बीपी उस वक्त शूट कर गया जब उन्होंने कुछ देखा या सुना। क्या घर में कुछ हुआ था? ज़हराब खामोश हो गई। उसके ज़हन में वो डायरी, वो खून की लकीर और वो शकूर चाचा की चीख घूमने लगी। मीराल आगे बढ़ते हुए, डॉक्टर, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर, फिलहाल नहीं, वो अभी सेडेशन में हैं। बेहतर है आप लोग घर जाएं और सुबह आएं। यहाँ सिर्फ 2 फर्द रुक सकता है। मीराल ने ज़हराब का हाथ थामा। ज़री, तुम चलो घर, मैं यहाँ रुक जाती हूँ या फिर अम्मी को बुला लेती हूँ, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। ज़हराब सख्ती से, नहीं मीराल, मैं यहीं रहूँगी जब तक दादी आंखें नहीं खोलती। मैं यहाँ से एक कदम घर के लिए नहीं उठाऊंगी। मेहरान ने ज़हराब को देखा, जो तकलीफ में भी कमज़ोर नहीं पड़ी थी। उसको ये देखकर अपने अंदर दफन किसी तकलीफ का एहसास हुआ। हसन, मीराल को घर ड्रॉप करो और खाला को लेकर वापस आओ, मैं यहीं रुक रहा हूँ। ज़हराब मेहरान की तरफ गुस्से से देखकर, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है मेहरान शाह, ये मेरा मसला है, मेरे घर का मसला है। आप हमारे लिए अजनबी हैं और मैं अकेली लड़की ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत नहीं, आप जा सकते हैं। मेहरान ने कोई जवाब नहीं दिया और चेयर पे बैठते हुसन को इशारा किया। मीराल ने एक नज़र हसन पे डाली और चढ़ से हुसन को देखते हुए बोला, अब इंटरनेशनल नमूने को झेलना पड़ेगा, क्या दिन आ गए हैं। हसन मीराल के करीब होकर बोला, आपने कुछ कहा मोहतरमा? मीराल ने नाक चढ़ा के हुसन को देखते हुए ज़हराब को गले लगाया। ज़री, तुम परेशान न हो, दादी जल्दी ठीक हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं घर जाके अम्मी को भेजती हूँ। ज़हराब को हौसला देते ही मीराल ने मेहरान को देखा और इल्तिजा के साथ कहा, प्लीज़ मेहरान भाई, ज़री का ख्याल रखना।
मेहरान ने इस बात में सर हिलाया। रात का सन्नाटा था, सिर्फ सड़क पर दबे हुए टायर की आवाज आ रही थी। हसन ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ जमाए हुए साइड मिरर से मेराल को देखा, जो सर दीवार से टिकाए, आंखें बंद किए बैठी थी। इसके चेहरे पर परेशानी साफ थी। हुस्न फिक्रमंदी से बोला, आप ठीक हैं? मेराल, जो पहले ही दादी की हालत और ज़हराब की बेचैनी को सोचकर अंदर से सिलग रही थी, इस सवाल पर अचानक चिढ़ गई। उसने झटके से आंखें खोलीं और हुस्न को घूरा। मैं ठीक लग रही हूं आपको? इतना सब कुछ हो गया है और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं ठीक हूं। आप लोग टोरंटो में इतने ही सेंसलेस होते हैं क्या? हुसन के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। ओहो, मैंने तो सिर्फ खैरियत पूछी थी, वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान तो नहीं किया था। वैसे आपका ये गुस्सा ना बिल्कुल इन पॉपकॉर्न्स जैसा है जो बिना वजह ही उछलते रहते हैं। पॉपकॉर्न? सीरियसली? हसन साहब, ये मजाक का वक्त नहीं है। मेरी बहन ज़हराब वहाँ अस्पताल के कॉरिडोर में पत्थर बनी बैठी है, मेरी दादी आईसीयू में है और आपको मेरी बातें पॉपकॉर्न लग रही हैं। हसन अब थोड़ा संजीदा था। देखें, मैं मानता हूँ हालात खराब हैं, मगर रोने धोने से या मुझ पर चलाने से दादी ठीक नहीं हो जाएंगी। कभी कभी दुख को गुस्से के पीछे छुपाने की बजाय इंसान को थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए। मेराल आंखें घुमाते हुए, आपसे तो बात करना ही बेकार है। जितनी तेज आपकी ज़बान चलती है, काश इतनी तेज ये गाड़ी चलती तो हम अब तक घर पहुंच चुके होते। हसन स्पीड बढ़ाते हुए, चैलेंज एक्सेप्टेड। अब अगर आपकी जुल्फें हुआ में उड़ी और आपको डर लगा तो मुझसे मत कहिएगा कि हसन साहब गाड़ी धीरे चलाएं। मेराल हाथ बांधते हुए, डर? मुझे? आप शायद भूल रहे हैं कि ये गुजरात है। यहाँ के लोग आप जैसे बर्गर बॉयज से नहीं डरते। चलाएं गाड़ी। हसन ने एक शातिर मुस्कुराहट के साथ एक्सीलेटर पर पांव रखा और एसयूवी सन्नाटे को चीरती हुई तेजी से निकल गई। मेराल ने डर के मारे सेट बेल्ट जोर से जकड़ ली, मगर गुस्से की वजह से मुंह से एक लफ्ज न निकाला। गाड़ी अब कसरे महर के दरवाजे के आगे खड़ी थी। मेराल ने गाड़ी का बैक डोर ओपन किया। इम्प्रेसो, आप तो बिल्कुल नहीं डरे, मैं तो आपको डरपोक समझता था, हुस्ने शरारती अंदाज में कहता हुआ। हैं जी, आपको ही तो इम्प्रेस करना रह गया है लाइफ में, अजीब नमूना। कहते हुए मेराल गाड़ी से उतरी और गाड़ी का दरवाज़ा जोर से मार के बंद कर दिया। हसन ने जली हुई मुस्कुराहट से मेराल को अंदर जाते देखा। अंदर नजमा बेगम अस्पताल जाने के लिए रेडी बैठी थी। हसन अंदर आ रहा था कि मोबाइल की रिंगटोन बजी। हसन की मोबाइल स्क्रीन पे एक नंबर चमका। हसन कॉल पिक करता है। दूसरी तरफ से एक संजीदा सी रोबदार आवाज आई, हुस्न खाला को लेके आने की जरूरत नहीं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। शाह, दादी ठीक हैं? मैं आ जाऊं फिर? हसन ने फिक्रमंदी से बोला। नहीं, जरूरत नहीं, खाला और मेराल का ध्यान रखो। हुसन समझ चुका था अगर शाह को उसकी जरूरत नहीं तो सच में सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। तो क्या तुम अपनी डॉल्फिन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो? लड़की मिली नहीं और भाई को भूल गए। दूसरी तरफ से मेहरान झुंझलाकर उकताए हुए लहजे में बोला, अपनी बकवास बंद करो, मैं पिकनिक में नहीं आया, अस्पताल में हूँ। इतना कहते ही दूसरी तरफ से फोन बंद हो गया। हुसन एक शरारती और हल्की सी मुस्कुराहट से अंदर दाखिल हुआ। अंदर नजमा खाला परेशानी में बैठी थीं। हुसन के आते ही खड़ी हुई। चलो बेटा, मैं तैयार हूँ, जल्दी करो। हसन ने एक लम्हा ठहर के मेराल को देखा, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। खाला जान शाह का फोन आया था। मेराल फौरन से बोली, क्या कहा मेहरान भाई ने? जल्दी बताओ, सब ठीक है? दादी ठीक हैं? और जरी, जल्दी बोलो, चुप क्यों हो? वैसे तो तुम्हारी जबान टिकती नहीं। मुहतरमा, आप चुप करेंगी तो मैं कुछ बोलूंगा। खाला ने खुफगी से मेराल को घूरा। शाह कह रहा था सब ठीक है, अभी किसी को जाने की जरूरत नहीं, जिसको भी मिलना है वो सुबह आए।
हस्पताल में 2 लोगों के अलावा स्टे की इजाज़त नहीं और ज़हराब साहिबा के पास शाह है, इसलिए खाला आप पुरसुकून हो जाएं। ज़्यादा मसला होता तो शाह मुझे बुला लेता। मैं सुबह आपको ले जाऊंगा और अगर किसी और को भी जाना है तो सुबह रेडी रहे, मीराल को देखते हुए कहा। खाला ने तहम्मुल से सारी बात सुनी और इस बात में सर हिलाया। जीते रहो बेटा, तुम और मेहरान आगे हो तो मेरी टेंशन कम होगी। बेटा तुम्हारा कमरा तैयार है, तुम जाके आराम कर लो, फिर सुबह जल्दी उठना है, अस्पताल चलेंगे। हुसन ने इस बात में सर हिलाया। जी खाला बेहतर। रात का आखिरी पहर था। अस्पताल के कॉरिडोर में सिर्फ पुरानी मशीनों की बेपिंग और बाहर चलती ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। ज़हराब थकान से चोर अस्पताल की सख्त कुर्सी पर सर टिकाए गहरी नींद में थी। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नींद में भी वाज़ेह थे। मेहरान की आंख खुली तो उसने देखा कि ज़हराब ठंड से हल्का सा कौंप रही है। इसने खामोशी से अपना महंगा ब्लेज़र उतारा और बहुत आहिस्ता से, बिना उसे जगाए, इसके कंधों पर फैला दिया। ज़हराब ने नींद में ही ब्लेज़र की गर्माइश महसूस की और थोड़ा सुकून मिला। अब ज़हराब नींद से जाग चुकी थी, बस आंखें खोलकर हकीकत का सामना नहीं करना चाहती थी। उसे खौफ था, दादी को खोने का खौफ। इसी पुल मेहरान का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मिस्टर फ्लाइक्स कॉलिंग। मेहरान ने एक नज़र ज़हराब पर डाली और दबे कदम कॉरिडोर से बाहर की तरफ निकल गया ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। बाहर बालकोनी और कॉरिडोर के दरमियान एक सुनसान एरिया था जहां लाइट्स मध्यम थीं। ज़हराब की आंखें बंद होती हैं, मंजर बदलता है। अस्पताल की सफ़ेद लाइट्स की जगह हवेली मुस्तर के ढलान पर असर सनसेट की नरम रोशनी फैल जाती है। छोटी ज़हराब अपनी माँ ज़ुबैदा के पास बैठी है जो कुरान पाक की तिलावत कर रही थीं। ज़हराब ने परेशानी में अपनी माँ का पलो पकड़ रखा था। छोटी ज़हराब, अम्मी, मुझे डर लगता है कि अगर आप या दादी मुझसे दूर हो गए तो मेरा क्या होगा? मैं अकेली कैसे रहूंगी? ज़ुबैदा ने तिलावत रोकी और बहुत मोहब्बत से ज़हराब का चेहरा अपने हाथों में लिया। उनकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। ज़ुबैदा, मेरी बच्ची, इंसान इस दुनिया में मुसाफिर बनकर आता है। हम सब का एक वक्त मुकर्रर है। याद रखो, कुरान में अल्लाह फरमाता है, कुल्लु नफ्स ज़ाइक़तुल मौती, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। हम सब अकेले आए हैं और हमें अकेले ही अल्लाह की तरफ लूट कर जाना है। छोटी ज़हराब आंसुओं के साथ, मगर अम्मी, अपनों के बिना तो दुनिया अंधेरी हो जाती है। ज़ुबैदा समझाते हुए, नहीं ज़हराब, अंधेरा तब होता है जब हम अल्लाह को भूल जाते हैं। रिश्ते तो अल्लाह की अमानत होते हैं और अमानत कभी न कभी वापस करनी पड़ती है। मगर वो ज़ात फरमाती है, वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलदूती, सब्र और नमाज के ज़रिए मदद मांगो। जब कभी अपनों को खोने का डर लगे तो अपना हाथ अल्लाह के हाथ में दे देना। इंसान छोड़ जाते हैं मगर अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। ज़ुबैदा ने ज़हराब की पेशानी चूमी और नसीहत की, हिम्मत नहीं हारनी मेरी जान। तुम्हारी ताकत तुम्हारे रिश्ते नहीं, तुम्हारा यकीन होना चाहिए। जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है वो दुनिया के किसी भी तूफान से नहीं डरता। अकेले रहना सीखो, क्योंकि कब्र में भी तुम्हारा अमल ही तुम्हारा साथी होगा। मेहरान फ़ोन पर स्पॉट लहजे में, हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक मैं वापस ना आऊं डील रोक दो। नहीं, मुझे अभी शेयर्स की परवाह नहीं है, बस कानूनी मामलात संभालो। कॉल ख़त्म करते ही मेहरान को अचानक महसूस हुआ कि कोई इसके ठीक पीछे खड़ा है। फ़िज़ा में अचानक मिट्टी और पुरानी किताबों की एक भारी महक फैल गई। मेहरान का जिस्म सनसना उठा। इसने तेज़ी से रुख मोड़ा। कौन है? मगर वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ खाली कॉरिडोर और कोने में रखा एक पुराना ट्राली। मेहरान ने एक गहरी सांस ली और अपने दिमाग का वहम समझकर वापस मुड़ने लगा, मगर जैसे ही वो पलटा, उसके होश उड़ गए। ठीक 2 कदम के फासले पर वो सफ़ेद लिबास वाली लड़की खड़ी थी। इसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में एक अजीब सा दर्द और गुस्सा मिला जला था। वो किसी इंसान से ज्यादा एक अक्स लग रही थी।
मेहरान हैरत और दहशत के दरमियान, तुम यहाँ कैसे? कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वार्ड की तरफ इशारा किया जहां दादी और ज़हराब थे। उसके होंठों पर वही दर्द भरी सरसराहट नमूदार हुई। मैं पीछा इनका करती हूँ शाह, जो रास्ता भूल चुके हों। आप तो सही रास्ते पर हैं। हवेली मुस्तर की दहलीज आपका इंतजार कर रही है। मगर याद रखिएगा, वो हवेली सिर्फ मेहमान कबूल करती है, दुश्मन नहीं, और आपके खून में दुश्मनी की बू बहुत पुरानी है। मेहरान गुस्से में आगे बढ़ते हुए, बकवास बंद करो, मैंने पूछा कौन हो तुम? लोग मुझे इलिजाफ कहते हैं, मगर हवेली की दीवारों के लिए मैं सिर्फ एक गुनाह हूँ जो बरसों पहले मिट्टी में दबा दिया गया था। मेहरान ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर ठीक इसी वक्त अस्पताल की लाइट्स एक झटके से बंद होकर दोबारा जलें। जब रोशनी वापस आई तो सामने कोई नहीं था। मेहरान का हाथ हुआ में था। पीछे से ज़हराब की आवाज़ आई, जो अब जाग चुकी थी और मेहरान का ब्लेजर अपने हाथों में पकड़े हैरत से उसे देख रही थी। ज़हराब, मेहरान शाह, आप कहाँ हैं और किससे बात कर रहे हैं? मेहरान ने पलटकर ज़हराब को देखा। इसका दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। उसने ज़हराब को ये नहीं बताया कि उसने क्या देखा, क्योंकि वो पहले ही टूट चुकी थी। मेहरान अपना लहजा नॉर्मल करते हुए, कुछ नहीं, बस एक बिजनेस कॉल थी। तुम्हारी आंख खुल गई। कुछ राज ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जाते, बस आंखों में सिमटते हैं, दिखाए नहीं जाते।